Namaste everyone. Hope all of you are well. This is the fourth lecture of P block elements. In this lecture, we are specially going to study about carbon family, group number 14. In the previous lecture, lecture number 3, I have informed you about some of the physical properties as electronic configuration, atomic number, mass number, ionization enthalpy, covalent radius, and little bit more some physical properties in lecture number 3. In this video, we are going to specially discuss all the details of group number 14, that is carbon family. Group number 14 is also known as carbon family. If I talk about the physical properties, then physical properties means atomic number, mass number, physical states, how they look, what are the color, in which form they exist, what are the metallic radius, what are the covalent radius, what are hydration enthalpies, ionization enthalpies, melting point, boiling point, density, each and everything. These are called physical properties. And if I talk about the chemical properties, means the reaction with air, that's oxygen, burning, reaction with water, hydrolysis, after the reaction with acids, reaction with base, and some important compounds. In 11th standard, we have discussed only and only two groups, that is group number 13 and group number 14. In the group number 13, we have discussed about from boron till thallium, but the main important compounds are boron and aluminum. Means whole, if we study, then that is the main element is boron in group number 13. Similarly, here also in group number 14, the main important compound if I talk about, that is carbon and silicon. So let's begin with group number 14, carbon family. So dear students, physical properties. Here you can see the physical properties as I have written on the board. As you can take a screenshot, and if you do not want to take, you just open your NCERT textbook. Already it's given in the NCERT textbook also. So here you can see the group number 14 elements are carbon, silicon, germanium, tin, lead, and this is last one. As I have informed you in group number, lecture number 3. Can you tell me what is the last element's name? Anyone can you tell me what is the last element's name? That is flerovium. Flerovium. Its name is flerovium. Remember, dear student, its name is flerovium. Fl. Its flerovium is the name of this last element of carbon family. It starts from carbon. Carbon atomic number 6, mass number 12. Silicon atomic number 14, mass number 28. Germanium atomic number 32, mass number 72. Tin, mass number atomic number 50, mass number 119. Lead atomic number 82, mass number 207. And this flerovium atomic number 114 and mass number 289. The general electronic configuration Ns2np2, but it follows only carbon and silicon. Rest of the elements do not follow Ns2np2 because you know very well 3d, 4d, 5d, 4f, 5f and 6d enters. So that's why the general electronic configuration changed from germanium to flerovium. Here you can note down the electronic configuration: helium 2s2 2p2, neon 3s2 3p2, argon 4s2 3d10 4p2, krypton 5s2 4d10 5p2, xenon 6s2 4f14 5d10 6p2, and radon 7s2 5f14 6d10 7p2. If I talk about the covalent radius of these elements, one more thing you can ask me here, sir, first of all tell about the nature of these elements, right? You can ask me the physical properties, are they metal, non-metal, metallite. So here I have written, first of all these group number 14 exist as a solid state. Carbon and silicon, they both are known as non-metals. Germanium is known as metalloids. Tin and lead they are the soft metals whose melting points are low, but if you compare group number 13 and 14, then it is much higher than group number 13. These elements melting points are much higher than group number 13. So here these are some physical nature of these elements. Now if I talk about the atomic radius, which is denoted in the picometer. Picometer means 10 to the power minus 12 meter. If I talk about the carbon, you can see here carbon covalent radius is 77 picometer. Silicon 118 picometer, germanium 122 picometer,
tin 140 picometer, lead 146 picometer. Leave the fluorocarbon because it is a radioactive element. Now ionization enthalpy, the minimum energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. If you remove all the electrons, all the outermost electrons from the carbon or this carbon family elements, the different amount of energy is represented in the kilojoule per mole. Here you can remove, if you remove the first electron from the carbon, means 2p2. In the p orbital, the second electrons if you remove, you have to give 1086 kilojoule per mole energy. If you remove the 2p1th electron, 2352. If you remove the 2s2 electrons, 4620 kilojoule per mole, and if you remove the 2s1th electron, 6220 kilojoule per mole energy. So as you remove one by one electrons, you can see the amount of energy increases. So here you can say ionization energy IE1, IE2, IE3, IE4. So IE4 is greater than IE3, IE3 is greater than IE2, and IE2 is greater than IE1. Ionization enthalpy first, ionization enthalpy second, ionization enthalpy third, ionization enthalpy fourth. Here you can see as we move down towards the group, now the ionization enthalpy also, if you remove the electrons, first one electron, you can see the ionization enthalpy decreases, except lead. Here you can see in the tin, if I talk about the tin, first ionization enthalpy is 708 kilojoule per mole. But if I talk about the lead, then you can see the first ionization energy of lead is 715 kilojoule per mole. So there is only a little bit difference, no need to worry because of the 4F screening effect. So that's why here 715 kilojoule per mole. Similarly, if we talk about second ionization enthalpy, you can see the second ionization enthalpy also decreases down towards the group, third also same, fourth also same. So here you have to just remember the ionization enthalpy of these two elements, dear students, because these two elements will show some anomalous property than other elements. So that's why the things which we should remember in this topic is these 2 points, right? Now we are moving towards the melting point, which is represented in the Kelvin. Melting point and boiling point, these two are the different things, you know very well. So the melting point of carbon is 4373 Kelvin. The melting point of silicon 1693 Kelvin. The melting point of germanium 1218 Kelvin. The melting point of tin 505 Kelvin, and the melting point of lead 600 Kelvin. So here you will see again only one element is increasing. The reason is 4F screening effect. Similarly, if we talk about the boiling point, the boiling point of carbon is very high, which is not represented here, but you can see here it starts from silicon. The boiling point of silicon is 3550 Kelvin. The boiling point of germanium 3123 Kelvin. The boiling point of tin 2986 Kelvin. The boiling point of lead is 2024 Kelvin. So here these are some physical properties. You can say the structure of this whole group number 40. The things which we should learn in this physical properties are these things and their nature. How do they behave? Whose ionization enthalpy will be greater as we move down towards the group. So here is the full chart. If you remember some things in the chart, then remember that is these are the main important things which should write in our notebook. Now, after understanding these all the physical properties, I would like to go towards one more physical property, that is electronegativity. Right? Here I have not written electronegativity. We don't have to write the value of electronegativity. I have already given the information in lecture number 3 that electronegativity increases or decreases in the group. So due to the small size of these elements, you can see the carbon, silicon, right? There are slightly more electronegative than 13 elements, but the electronegative values from silicon to lead all are same. कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना याद रखना है. The elements electronegativity are greater than group number 13 because I have already said you as we move left to right to left in the periodic table, मतलब बाएं से दाएं जब हम लोग जाते हैं पीरियड में, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, सोडियम से लेकर के नियन की तरफ, लिथियम से नियन की तरफ, सोडियम से आर्गन की तरफ, left to right as we move the electronegativity increases, right? So here also group number 13 से ज़्यादा होगा electronegativity value group number 14 का. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. बाकी जो पीरियोडिक टेबल का ये जो एटॉमिक
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने डाउट्स को नीचे में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज समझना है या दूसरा समझना है, आपको जो भी करना है आप अपने डाउट में कमेंट बॉक्स में डाउट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब क्वेश्चन आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को जनरली सिखाया है, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस होते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। एयर से रिएक्शन कीजिएगा, वाटर से रिएक्शन कीजिएगा, एसिड से कीजिएगा, हैलाइड से कीजिएगा, किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसा नेचर है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, आयनिक रेडियस बनाएगा, कोवेलेंट रेडियस बनाएगा, यही सारी चीजें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके दिमाग में एक वर्ड आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले वैलेंसी, राइट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इतना तो सबको पता है, राइट। ग्रुप नंबर 14 में जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड या फ्लोरोवियम, ठीक है, सबके लास्ट सेल में अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन P वाला जो है 2 रहेगा, S वाला 2 रहेगा, दैट इज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, राइट। तो फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकेंड s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2 and 2p2, right. If I talk about the excited state, this is ground state, as the electrons are in ground state. If I talk about excited state, so there will be 2 electrons in 1s2, 1 electron in 2s, and 3 electrons in p orbital, that's 1, 2, 3, right. 1s2, 2s1, 2p3, 2px, 2py, 2pz. So here you can tell me, sir, now if we remove these 2 electrons from the carbon, carbon can give you C2 plus valency, right. If you remove all the 4 electrons, it can give you C4 plus property, and if you take 4 electrons, it will give you C4 minus property. So 3 oxidation states of carbon exist: C2 plus, 4 plus and 2 minus, right. Sorry, 4 minus, not 2 minus. Group number 14 elements have 4 electrons in the outermost shell, so the common oxidation state exhibited by these elements are +4 and +2. Carbon also exhibit negative oxidation state since the sum of the first 4 ionization enthalpy is very high, so that's why the compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature. तो मेरे प्यारे बच्चों, +4 में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे हम ग्रुप में जनरली यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये 2 मतलब +2 एंड +4 ये ग्रुप नंबर 14 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे, लेकिन जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो +2 विल बी मोर स्टेबल देन +4, लेकिन ऊपर में +4 ज्यादा स्टेबल होगा। अब बोलोगे सर क्यों +4 ज्यादा स्टेबल होगा? क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर +4 क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है कोवेलेंट इन नेचर कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड बनाएंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो मतलब लूज करेगा तो +4 हो जाएगा, राइट। So +4 compounds in +4 oxidation states are generally covalent in nature. As the carbon family members are heavier, the tendency to show +2 oxidation state increases in the sequence of germanium, tin and lead. Now question comes, germanium, tin and lead, these two increases, जैसे नीचे आएंगे तो +2 oxidation state और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए, अगर नहीं आया देन इट्स वेरी लेस कह सकते हैं कि सर +2 किस हिसाब से स्टेबल होगा। तो
तो +2 जो है NH2 वाला इलेक्ट्रॉन, चाहे जर्मेनियम, टीन और लेड में से कोई भी आप, मतलब जैसे मान लीजिए ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो 4s2, 5s2 और 6s2, इसके s के इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो ये स्टेबल होंगे। ये मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स और ये दोनों मेटल, इवन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो आपको दिमाग में समझ गए होंगे कि ये दोनों जो है नॉन मेटल है, ये आपका मेटलॉइड्स है, और ये तीनों जो है आपके, ये दोनों, नॉट तीनों, ये दोनों मेटल है, और ये जो है रेडियो एक्टिव मेटल्स। तो आप समझ गए होंगे कि भाई इसमें तो लगभग 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड इवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। So if I talk about it, is due to the inability of NS2 electrons of the valence shell which participate in bonding. The relative stability of these two oxidation states is varying from down towards the group. Carbon and silicon mostly show +4 oxidation state. Germanium forms stable compounds in the +4 oxidation state and only few compounds in +2 oxidation state. But if I talk about the tin and lead, both show +2 oxidation, means they are a reducing agent. So that's why lead compounds in +2 states are more stable than +4, which are strong oxidizing agents. If I talk about the tetravalent state of the nature of the electrons around the central atom in a molecule, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता होगा कि कार्बन CCl4 में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, तो कार्बन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बीइंग अ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, दे आर नॉर्मली नॉट expected to act as an electron acceptor or electron donor species. Although carbon cannot exceed its covalence character more than 4, so other elements of the group number 14 can do it because they are having more vacant orbitals. That's why it is the presence of D and F orbitals. It goes and it shows their halides, and halides undergoes the hydrolysis, which have a tendency to form complexes which accept the electrons. They form the donor species. As for example, if I talk about hexafluorosilicate 2, hexachlorogermanium 2, hexahydroxytene 2, they exist with the hybridization sp3d2 means octahedral complexes. तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं और स्टेबल होंगे। कार्बन और सिलिकॉन मैंने बताया आपको +4 के कंपाउंड बनाएंगे। जर्मेनियम में कुछ कंपाउंड +4, बाकी सारे के सारे +2। ये दोनों तो पक्का है +2, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। तो आप लोगों को बस ये दो पे थोड़ा आपको डाउट जाना चाहिए कि कार्बन और सिलिकॉन जो +4 वाले बनाएंगे, +4 क्यों बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 शो करते हैं, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। अब दूसरा है, दूसरा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की या मोनोऑक्साइड की, कि ये ग्रुप नंबर 14 के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप सबको गर्म करोगे, हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो सब क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। कुछ मोनोऑक्साइड्स बनाएंगे, कुछ डाइऑक्साइड। जितने भी मेटल हैं वो मोनोऑक्साइड्स, नॉन मेटल आपको डाइऑक्साइड्स भी बना दे सकता है, राइट। MO और MO2 मतलब सारे एलिमेंट्स का आप लिख सकते हैं। वैसे जनरली जो है हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बताया भी तुमको कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसके साथ +4 वाले कंपाउंड्स भी बनाएंगे, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब MO का मतलब समझ लेना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और MO2 का मतलब समझ जाना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो क्या सब कंपाउंड्स बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टीन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। मतलब एक चीज तुम्हें समझ में आ गया कि सब के सब जो है डाइऑक्साइड तो बनाएंगे ही, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इन द when they react with oxygen, right? So here if I talk about silicon oxides only exist at a high temperature.
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये दो एक ऐसे एलिमेंट है। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो उल्टा हो गया, सिलिकॉन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें पता है कि जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड जो मोनोऑक्साइड है, अगर इसको फॉर्म करना है तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हमको ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था। और बाकी सारे एलिमेंट्स, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। डाइऑक्साइड्स आर एसिडिक, वेयरएज एक चीज और, टीन और लेड का जो डाइऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि वो मेटल्स में आ जाते हैं तो वो इवन एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर टीन और लेड के जो डाइऑक्साइड्स है SnO2 और लेड का PbO2, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक नेचर बिहेव करेंगे, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड ये सब जो है एसिडिक नेचर में बिहेव करेंगे, राइट। अब मोनोऑक्साइड की बात करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड एसिडिक, टीन और लेड का मोनोऑक्साइड एम्फोटेरिक। मतलब सीधा सीधी समझ जाओ बच्चों, जो मेटल्स होते हैं इवन दोनों बिहेव कर रहे हैं, तो ऑलरेडी नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है और ये दोनों मेटल्स हैं, तो ये एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक, एसिडिक एसिडिक एसिडिक। तो दिमाग बस इतना ही लगाना है कि ऑक्सीजन में +2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक या बेसिक नेचर में होगा, तो बेसिक तो होगा ही नहीं, यहाँ पर एम्फोटेरिक होगा और एसिडिक होगा, राइट। एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, select the members of group number 14 that forms the most acidic oxide which is commonly found in +2 oxidation state and also used as a semiconductor। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसका डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ग्रुप नंबर 14 में? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द मोस्ट एसिडिक। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, which compound is मोस्टली या कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा? लेड, जो मेटल है, मैंने तुमको बताया अभी, ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो जितना कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो लेड ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड पाया जाएगा, राइट। और तीसरा है कौन से एलिमेंट को हम लोग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब मेटल नहीं है, मतलब मेटल की कैरेक्टर भी है, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स टाइप का बिहेव कर रहा है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो है तुम्हारे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब तुम जानते हो जिसमें थोड़ा करंट पास भी हो रहा है, थोड़ा नहीं, मतलब पार्शियली करंट इज पासिंग, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, राइट। अब जो है इसके बाद हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ग्रुप नंबर 14 को रिएक्शन विथ वाटर। अब बताओ रिएक्शन विथ वाटर करेंगे तो क्या सब होगा, बता सकते हो? थर्ड हमारा है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर मतलब H2O के साथ अगर हम ग्रुप नंबर 14 को रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सीधा सीधी समझ लिया, ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टीन डिकम्पोजेस टीन फ्रॉम डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। सीधा सीधी समझ जाओ, पूरे में से नॉन मेटल के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं, मेटलॉइड्स के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है टीन। तो टीन जो है तुम्हारा ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा। These elements do not react with water, सीधा सीधी, क्योंकि कोई जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के ऊपर में पानी का कोई प्रभाव पड़ता है नहीं, उसी तरह ये तीन नॉन मेटल है जिसके ऊपर में पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको करते हैं मतलब डीकम्पोज, जैसे गर्म पानी होता है स्टीम वाटर, तो अगर इसको हम गर्म पानी में डालते हैं तो ये टीन ऑक्साइड SnO और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर टीन जो है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो टीन +4 में होगा तो SnO2 + H2, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 2H2O कर देना, बस हो गया आंसर, राइट, 2H2 हो जाएगा। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। हाँ,
ये जो है तुम बोलोगे कि सर इसको तो होना चाहिए, इसको भी तो रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये जो है तुम्हारा रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वाटर को, वो एक फिल्म बना लेते हैं, ऊपर में एक लेयर बना लेते हैं, जिस लेयर पर ये वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ वाटर ऑफ ग्रुप नंबर 14। अब है रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। ये सबसे बड़ा यही है, हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैलोजन, क्योंकि वो हमारे डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का कंपाउंड और कितने ऑक्सीडेशन नंबर, कितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं। रिएक्शन विद हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है केमिकल में, रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब बोलोगे कि हैलोजन के साथ मतलब, हैलोजन का मतलब X2 हो गया, X समझ लेना, X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार को जनरली हैलोजन कहा जाता है, राइट। अब तुम पूछोगे कि सर ये किस तरह से रिएक्शन करेंगे, अगर ये 4 वाले तो तुमको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, सिलिकॉन डाइक्लोराइड भी होता है, तुमको ये सारी चीजें पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि इनके जो हैलाइड्स होंगे वो जनरली MX2, ये सबको अगर मेटल मान ले तो MX2 और MX4 ये दो तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। अब बोलोगे कि सर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो MX2 बनाएगा और कौन सा एलिमेंट है जो MX4 बनाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए। अब एक चीज क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं कि कार्बन को छोड़ लो, बाकी सारे जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ये डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्शन करके MX4 कंपाउंड बनाते हैं, जो कोवेलेंट इन नेचर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, एक्सेप्ट टीन टेट्राफ्लोराइड एंड लेड टेट्राफ्लोराइड, ये दोनों जो है आयनिक होंगे, लेड आयोडाइड बनेगा ही नहीं, राइट, लेड आयोडाइड बनेगा ही नहीं, क्योंकि लेड आयोडाइड इनिशियली जो बनता है वो रिएक्शन रिलीज ही नहीं करता है, तो वो 6s2 में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि लास्ट सेल का जो वो 6s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल होने के कारण, और उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो जाएंगे, तो जिस कारण से ये कंपाउंड नहीं फॉर्म होते। जर्मेनियम से लेकर लेड तक उनका जो फॉर्मूला होगा हैलाइड का वो जनरली डाई मतलब MX2 के फॉर्म में होंगे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो उनका जो डाई हैलाइड्स है वो बढ़ते जाएगा, ऊपर में टेट्रा हैलाइड्स बढ़ेंगे। थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी की बात करूं तो जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू जर्मेनियम डाई हैलाइड, और अगर फिर वही लेड, जैसे लेड X2 will be more stable than lead X4 except CCl4 other tetrachlorides are easily hydrolyzed। तो यहां पर सिर्फ एक कार्बन है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर पानी में दोगे तो वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, और इवन जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व होकर डी ऑर्बिटल ढूंढते हैं जो उनको नहीं मिलता, तो जिस कारण से इनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो आप जानते होंगे, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जो इनिशियली इनके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इजीली जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा, सिलिकॉन का फॉर्मेशन SiOH4 के रूप में होगा। तो ये मेन था, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 1 बाय 1 सारा चीज समझा देता हूं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इसमें जो मेटेलिक डाई हैलाइड्स और टेट्रा हैलाइड्स, तो MX4 जो होगा वो कोवेलेंट इन नेचर होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन MX4 कोवेलेंट इन नेचर and hybridization sp3, और इसका जो कंपाउंड होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। अब बोलोगे सर क्या सारे कंपाउंड्स बनाएंगे? अच्छा चलिए CCl4 से स्टार्ट करते हैं, CCl4 SnCl4 से लेकर के जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, तो मैंने बताया आपको +2 विल बी मोर स्टेबल, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करोगे जैसे PbCl2 एंड PbCl4, यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में फटाक से कि सर PbCl2 ज्यादा स्टेबल होगा कि PbCl4? तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही चीज बता देता हूं कि अगर लेड की मैं बात करूं तो PbCl4 विल बी लेस स्टेबल देन PbCl2,
मतलब PbCl2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू PbCl4, क्योंकि यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल as they are metal in nature and you know very well they are having some electrons are very far away from the nucleus, right? 6s वाले इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खाली जो है अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड होंगे। तो जिस कारण हाँ एक और तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर लेड वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है PbI4, मतलब इधर का भी लास्ट और इधर का भी लास्ट, तो PbI4 बनेगा सर, इज इट पॉसिबल? तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं होगा। समझ लो, सीधा सीधी लेड टेट्राआयोडाइड एग्जिस्ट नहीं होगा, सीधा सीधी समझ लेना, क्योंकि इसमें लेड में जो सिर्फ 6s में वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी जो लेड वाला है जो उसमें f इलेक्ट्रॉन है d इलेक्ट्रॉन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, जिस कारण से लेड आयोडाइड टेट्राआयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया बच्चों? हेवियर मेटल्स के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। एक और क्वेश्चन है कि सर अगर हम पानी में घुलाएं, तो पानी में अगर आप घुलाओगे टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड्स को अगर वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? आपके दिमाग में सिर्फ कार्बन के जो टेट्रा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी +4 इज मोर एंड मोर स्टेबल, तो यहां पर ये सिर्फ कार्बन विल बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज the central atom can accommodate the lone pair of electrons from the oxygen of water molecules in d orbital। आपको यहां पर तुम बोलोगे कि सर इसमें तो d ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका चलिए हटाइए, यहां पे SnCl4 को लीजिए, तो SnCl4 में स्टीन का जो 3d वाला होगा और ये ऑक्सीजन के जो 2 लेवल पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 के d ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट होंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर तो इसमें कैसा कंपाउंड बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका 3SnOH हॉल टेट्राहाइड्रोक्सी T, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, वैसे कंपाउंड है। तो यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर आप मुझे कहे बनाने के लिए, तो वैसे तो एनसीईआरटी में बना हुआ है, सिलिसिस एसिड होगा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो HCl रिमूव होगा, धीरे 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 सारे HCl रिमूव होकर के, मतलब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो आप डोंट वरी मैं बना देता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए SnCl4 है, ठीक है, इसको आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया H2O के साथ, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर Cl, और ये वाटर का H2O जो आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक दूसरा हाइड्रोजन इधर। तो अब ये जो दोनों लोन पेयर है, तो 3 का एटॉमिक नंबर 14 आप ये भी जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? नियन 3s2 3p2, और यहां पर 3 के अंदर में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो है 3d 0, राइट। तो यहां पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d जो है इनका वैकेंट है, राइट। तो यहां पर अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो एक यहां हो जाएगा, तो भी इसके पास जो 2 लोन पेयर है वो खाली है, तो ये दोनों लोन पेयर को इजीली 3d में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 पहला एक हाइड्रोक्सी इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं SnCl4 और H2O का, तो ये -4HCl बाहर हो जाएगा और SnOH होल 4, मतलब सारे क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा? SnOH होल 4, मतलब इस तरह से कुछ कंपाउंड बनेंगे, जैसा आपका क्लोरीन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है उसी तरह से आप यहाँ पर SnOH4 SnOH4 SnOH। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 लिगेंड्स हैं। तो चारों लिगेंड्स को एकोमोडेट होने के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको, इजीली कर सकता है, लेकिन इसके पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस तरह का ये इजीली से कंपाउंड, जिसका नाम अगर कोई पूछेगा सर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस SiOH होल 4, तो सिलिसिलिक एसिड। एक और क्वेश्चन है,
SiF62 minus is known where SiCl62 minus is not. Give possible reason. Very nice question. मतलब SiF62 minus बनता है और SiCl62 minus नहीं बनता है. क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि hexafluorosilicate 4 ion is formed and hexachlorosilicate 4 ion is not formed. Give reason. इसका मेन रीजन यही है कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को कंपेयर करें, एक तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज भी बहुत छोटा है और क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो 6 large chlorine ion cannot be accommodated around the silicon 4+ due to the limitation of its atomic size. And second, interaction between the lone pair of chloride ion and silicate 4+ ion is not very strong. मतलब ये इसके जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना फ्लोरीन है, तो जिस कारण से ये जो है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका जो सिलिकॉन का है ये दोनों का एटॉमिक अगर आप देखे होंगे तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड राइट और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो यहां पर देख लीजिए सिलिकॉन और क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, दोनों में एटॉमिक साइज है दोनों का, लेकिन सिलिकॉन का थोड़ा छोटा होगा, मतलब क्लोरीन का छोटा होगा सिलिकॉन से, तो लेकिन फ्लोरीन का तो बहुत छोटा होगा तो उसके साइज को इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो है थर्ड पीरियड का सिलिकॉन और क्लोरीन एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए ये कंपाउंड नहीं बना सकता है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं बना सकता है. मेन रीजन यही है कि स्ट्रॉन्ग कंपाउंड यहाँ पर ये नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है और एटॉमिक साइज भी छोटा है, तो इस तरह से ये कंपाउंड बना सकता है. तो आपने अभी देखा कि ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी. इसके बाद जो होगा वो होगा हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन और उसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. आप सब जानते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट व्हिच आर स्पेशली बीइंग यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट्स. कार्बन और सिलिकॉन के कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ आपको इतना समझना था कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14 that is carbon family. That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much.